Okay, dear guys, good morning. Today's lecture is how to keep Earth livable in reference to global warming. I will cover this lecture in two parts. Actually, this lecture is in the memory of Bharat Ratna honorary Dr. APJ Abdul Kalam. Because on 25th July 2015, he was to deliver lecture on creating a livable planet Earth. Creating a livable planet Earth. His vision was very high. His vision was always matchless. उनकी सोच बहुत अच्छी हुआ करती थी. Lecture was of 4,000 words. So far I have not seen his lecture in detail, but in his memory, I tried my level best to change the topic on the same pattern, how to keep Earth livable in a reference to global warming. Because Earth, planet, where you and we live, where life exists, where life exists. Where life exists, Bala, where we live, that is my home. That is my home, our habitat. If we have a nature of destructing and devastating our house, what will happen? How can we survive? Certainly we will go off. So, in this, will you have some microphone? No? Acha, okay. Okay. Now, again in this lecture, there are 3-4 slides being repeated. That is very important because these slides have very relevance and significant with my lecture. Means we have to have idea of origin. Already I have told in first lecture, but again I am repeating. Universe, Kainat or Brahman originated 30.7 billion years ago. Sun 4.567 billion years ago, Earth 4.54 billion years ago, Moon 4.53 billion years ago, and Ocean 4 billion years ago, where life existed. Life originated 3.5 billion years ago. And through the evolutionary process, life existed in the form of genetic structure, genetic structure, and that started evolution with a number of process and converted into or evolved into different organism. अभी one by one आएगा. अभी तो लाइव बताया organism. What is organism? I will let you know. Organism, and through these evolutionary process, human. Any Homo sapiens, you and me, we are Homo sapiens. You and me appeared 2 to 2.5 lakh years ago. The story of origin is in billion. Life origin is billion. But appearance of you and me is in lakhs, 2 to 2.5 lakh years ago. And the same man, you and me, you understand, used to live near the bank of river, where there is water, there was water. You used to live naked, fire by stone, by rubbing of woods, food material, food item was by hunting or picking up of wild fruit and grain growing there. This was our lifestyle. But after Stone Age, Iron Age, I am not going back in detail. You see, after Stone Age, slowly and slowly, the same man started growing agriculture 10 lakh years BC. Yani you add 2000, it is 12,000, more than near about 12,000 years ago started. How? How did he come to know about the agriculture?
We are not doing. There are no crop, no wheat, no rice, no paddy, no cauliflower, cabbage. How did he come to know? What were the food material, grain? Those human used to collect and eat by roasting, by burning, by boiling. Ultimately, slowly and slowly, what they found, those seeds started growing nearby, near their habitat. Then their IQ started developing. बोलते जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका IQ बढ़ेगा. Brain का hardly 1% our brain, 1% of the brain is being used by human. Hardly, like your mobile. There are so many features, and I am sure none of you know how many features are there. Very less features you are using, like the brain. Then they started matching. Oh, the same food grain, same fruit we collected from up that is growing, started matching. Then they started agriculture, and the previous question ban gaya. The first crop they started growing was millet. Millet में था ज्वार, बाजरा, ये सब मिश्र मिलेट में आता. Anyway, this lecture is not a specific lecture. This is a combination of earth science, material science, physics, chemistry, life science, agriculture and geography. Correct? Because, again the same. You see, already I have shown this globe. This is planet Earth. How many planets are there? कितने planets हैं? 8. Good. Planet Earth. You know planet Earth, everything I have told. Equatorial perimeter, 40,075. Meridional, 40,008. Equator, you know, 7368 probably kilometer. And 0 degree, then 0 degree. अब आप इसमें today I am changing. 0 degree is equator. Above equator it is north, 10 degree, 20 degree. Above, below it is south, 10 degree, 20 and up to, ऐसे you keep on moving. इनमें क्या है कि first line, you see the first row, just above the 0 degree, ये आपका, this is 0 degree. This is क्या है? What is it? This is कर्क रेखा और मकर रेखा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. गुड. हिंदी में क्या कहेंगे? कर्क. एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट? ये 0 डिग्री से, यू सी, फ्रॉम 0 डिग्री टू दिस प्लेस, this is 23.5 degree north and this is 23.5 degree south. And this area is known as tropic. Tropic. Why I want to emphasize on this tropic? Because this is the area where maximum solar energy is received. Maximum solar energy is received. And that is why this area is biodiversity rich. Maybe plant, maybe not. Varieties of plant and variety of animals. They live, grow, breed, multiply. Getting my point? Yes. This is topic. और इसका डिग्री क्या है? 23. हाँ. आई थिंक वो ट्रॉपिक नहीं दिखा रहा है, वो 15 डिग्री की लाइन से. क्या चीज? 15 डिग्री लैटिट्यूड दिखा रहा है वो. नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप 0 से 23.5 पे जाइए ना. हाँ, जो मतलब लैटिट्यूड इसमें शो कर रहा है, जिस पे आप. अरे ये एक्चुअली आई एम गोइंग टू चेंज. इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कहाँ पर है. आई एम नॉट एबल टू रीड. हम इसको बदलेंगे कि 0 से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 20 के बाद जो 30 जब आता है, 30 आता है तो बिलो 30. गेटिंग में? क्योंकि इंडिया इज जस्ट अबव 10 डिग्री नॉर्थ. इंडिया इज जस्ट 10, 20 के बाद 30 यहाँ आना चाहिए, राइट? इसमें जितनी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज in the tropics are rich in biodiversity. Now, planet Earth has 7 continents. Total area is, day 4 study, a few days back I got 510 million square kilometer, right? And total composition of planet Earth is 71% water, 71% water and 21%
sorry 29% land. ये इसका this is the composition. Now you see, out of 7, Asia is the biggest continent with 51 countries and population is 4.56 or 4.67 billion, right? Next is Africa. Next continent is Africa. Africa, total countries are 54. Population is 1.37. Third one is North America with 23 countries and population is 57.6 crore. And fourth one is South Africa with 14 countries and population is 42.3 crore. Fifth, no man lands, you know. Fifth, in Europe, 51 countries with 78.87 crores. And last but not least, Australia with 3 countries and population is 2.58. This is the since I have to deliver lecture on how to keep Earth livable, and this is the population, current population, and total countries are almost 196, and total population as on today has reached 7.86 billion, say 7.9 billion, 7.9 अरब, 7.9 अरब. You see, next, today 7.9 billion. If you go back to just 57 years back, 57 years back is not very far. इवन आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आजकल हमारे देश में भी हैं, बाहरों में भी लोग 120 साल के लोग जिंदा हैं. तो 150 years is not very big time. 150 years back in 1864, total population of globe was 1 billion. 1864, this was the time when Edison discovered bulb, Graham Bell, mobile, so many pen, so many things. But you see, to add 1 billion more, it took 63 billion. This population became in millions of years. But next 1 billion increased or was added in just 63 years. But after this, how fast the population grew. You see, 3rd billion in 33 years, 4th billion in 14 years, and 5th billion in 13 years. And it was 6 billion in 11 years. And this was the time. अब देखिए, 1 billion population increase is just 63 years. And in 70, from this you count, it is 71 years. 70 years. In 17 years, about 4-5 billion population added very fast, very speedily. And it was 11th May 2000 when the population of India became 1 billion. All the continents, all the countries started looking towards India, that how fast Indian population is growing, and certainly it was next to China. And what would happen on this earth? Means their concern was maximum resources, maybe water, air, soil, plants, fruits, diesel, fossil fuel will be utilized by them. Then there was a great concern, and population control system was brought into practice. समझ में आ रही बात बच्चों? Brought into practice. Certainly the population control was existing from back, but not. It was very casually. People were not ready to go for अपना जो population control में believe नहीं करते थे. They linked it with the religion. Now they themselves have been are prepared to control their birth. Now, after 33 years, देखो, जब there was great concern, it was Mrs. Indira Gandhi. She tried her level best to control birth rate. So, since then, the time
started taking less time. You see, 14, 13, 11. But after this, again, because with the concern of population control, time started in 15 years, then 16 years, then 20 years. अभी 20 years तो आया नहीं है आपको ना, but it was estimated that by 2030 we are going to become 150 million, 1.5 billion. ये पहले एस्टिमेट किया था, स्लाइड पुरानी में 2030 में होगा, लेकिन दिस इज 2020 and we have already touched 1.39 billion. As on today, we are 1.39 billions, and by the end of century it was 10 billion. But if the rate keep on increasing like this, it will cross 10 billion. Now, what is the total capacity of globe? अर्थ की कैपेसिटी क्या है? Somewhere I read, even वेबसाइट पे देखा है कि it has been estimated 11 billion. Total capacity of Earth is 11, not more than it. वो 11 billion आप कह सकते हैं तो बहुत accommodate. Yes, 100 billion can be accommodated. Why 11 billions? Because 11 billions people can live on planet Earth based on the presence of their resources, water, air, food, ये सब. इसके बाद तो भी क्या होगा आप समझते हैं. नाउ नेक्स्ट, इसके पहले फिर से चलो जाओ, एक बैग जाना चाहता हूँ. देखिए, आपने दिखा दिया कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कन्वर्टेड इनटू सेल, सेल इनटू टिश्यू, टिश्यू इनटू ऑर्गन, ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन इनटू ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ से हम, ये तो पहले था यार, ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? पॉपुलेशन, देन पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल क्वांटिटी, इकोसिस्टम, ये सब सारा होगा. ये बता दें. ये नाउ सी ऑलरेडी टोल्ड, इसमें कोई बात नहीं. ये बताने के बाद अब देखिए वाटर लैंड बना दिया. और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? वायुमंडल में हवा कितनी है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93 आर्गन, ओके, एंड जस्ट 0.1% अदर. रेस्ट 0.1% कंसिस्ट ऑफ ऑल द अदर गैसेज इन ट्रेस. बहुत कम में वो रहती है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.04%, राइट. मीथेन, नियॉन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, वाटर, इवन वाटर वेपर भी है 0.02%. तो दिस इज द गैस composition of air on the earth, which create our life, which maintain our life, which make us to live life. When you talk about Mars, Mars जानते हैं, Mars में लाइफ है नहीं है? क्यों नहीं है? Their air composition is entirely different. How? Carbon dioxide is 96%, 95%. See, यहाँ 0.04%. अभी हम इसको करें, अरे बाप रे, ग्लोबल वार्मिंग. बट इन माई लैंग्वेज आई सेड ग्लोबल फायर. इसमें हम वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव. बट सी मार्स 96%, नाइट्रोजन 2.6%, ऑक्सीजन जस्ट 0.16%. यहाँ 20 पर ऑक्सीजन 0.1. तो दिस इज, वहाँ पे सिचुएशन रिवर्स है. तो लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ये थोड़ा हम अलग से बता रहे हैं. नेक्स्ट चलिए. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर 71 में बता दिया. अब वाटर अभी देखिए इसमें, सिंस द प्लेनेट अर्थ हैज़ टू मेंटेन लाइवेबल, तो वी हैव टू हैव consideration on air, water, soil, plant, forest, rocks, mountain and what not. तो फर्स्ट मेन वाटर है. वाटर के देयर आर 3 forms of water: gas, liquid and solid. But water remain where? Exists in the air. कल बताया in gas form, as water vapor in rivers, lakes, ice caps. बता दिया ice caps में अंटार्कटिका में भी है, माउंटेन पे भी है, ग्लेशियर्स में भी है. एंड ग्लेशियर्स इन द ग्राउंड है, सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड में भी काफ़ी नीचे होती है ग्राउंड में. एंड इन एक्विफर्स वाटर के और लेवल हैं. एंड इवन यू एंड मी, इवन यू, डॉग, प्लांट, समवेयर.
Even the water that remain in life, that remain in organism. Organism may be plant and animal. Organism doesn't mean only you and me. Organism means plant and animal both. And the water that remain in organism is called as biologically bound water. Mind, biologically आपसे पूछा जा सकता है, question create. What is biologically bound water? And what is their percentage? That is 0. Out of 1 point and 0.9%. अभी आ जाएंगे. Now water is never still, sitting still, एक जगह रहता नहीं. It keeps on changing. Gas, solid, liquid, कभी आइस में, कभी बर्फ में. Other 29% consists of continents and islands. वो ग्लोब को दिया है. Now बता दिया, कोई बात नहीं. Total volume of water on earth is estimated being salt water, पता है 97%, and 3% soft water being fresh water. ये पता है कुछ, चलिए दिखा दिया. Now what are the main sources of water? Surface water, ground water, and collected rainwater. Collected rainwater. All of which are dependent on rain and snow falling on the earth's surface. इस सारे के सारे depends on snow falling. Already I have told, अब 3% जो वाटर है आपका, 3% का डिस्ट्रीब्यूशन already I have told you. I am not going to repeat you. But you must know that out of 3% fresh water, their distribution is like this. You see, out of this 3%, maximum remain in ice cap and ground, and only 1.2% remain as 1.2% of 3% remain as a surface water. Where 0.9% in plant and animal and moisture, right? And only 0.3% fresh surface water जो हम पीते हैं, मे बी लेक्स में 87, swamps में, रिवर में. तो it is very easy to damage and devastate whole water, fresh water. आप हमने कहते हैं गंगा जी पानी खराब कर दिया. We have wasted our pond, लेक सब हमने बर्बाद कर दिया है, नदियों को खराब कर दिया है, क्योंकि दिस इज वेरी लेस वाटर. हमको इसको बर्बाद करने में, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर. नाउ अर्थ पे क्या है, माउंटेन कवर. ये माउंटेन इज आल्सो वन component of planet Earth. Mountain cover is 25% on the Earth's land surface and directly support 12% of Earth's population living within mountain region. Getting my point? 12% of the population live within the mountain region, and mountain also contains water. Mountain also holds water, that is known as water towers. One question you have got. Also you have got one question. Mountain water is called natural water towers. अक्सर पूछा है natural water tower. This is mountain. Mountain also holds water. आपने चट्टानों पे कभी गए होंगे, देखिए रिश्ता रहता है, पानी रिश्ता रहता है. Mountain tower, water towers. What we are doing now, Himalaya 2900 kilometer north to east. You know, there are roads, maybe J&K, maybe Himachal Pradesh, maybe I have seen almost all places. All rocks are being blasted. National highways are being constructed. Certainly, I say this is not necessary, this is not needed. By blasting, when you blast with the dynamite, what happens? The portion which you want to break, that is broken, but entire area, entire hillock is vibrated. And जैसे आपका दांत में मारिए तो पूरा हिल जाता है, ऐसे इंटायर. तो वी आर मेकिंग फ्रेजाइल हिमालय more fragile, making fragile Himalaya more fragile, and creating a situation of more and more mudslide and landslide. The whole world will. अब आपसे पूछा जाए क्या पूरा दुनिया पानी में डूब जाएगी? आंसर इज the whole world will never be under water. क्योंकि 75% हमारे पास वाटर है, 71%, 29 में क्या डूब जाए? नो.
But our coastlines would be very different if at all the ice covering. In Antarctica, Greenland in mountain glaciers around world were to melt, अगर पिघल गए, sea level would rise about a quarter of their original mass. A quarter. If Antarctic glacier were to melt, there would be rise of 60-70 meter and 200 feet rise in sea and engulfing so many coastal areas. और पूरे पिघल गए, a quarter of the original mass पर असली quarter will rise. Now, over the course of about 4 billion years, यानी ocean originated 4 billion years ago. Since then, ocean have lost about a quarter of their original mass. अपना खत्म क्यों? कि we are encroaching and encroaching and encroaching. उसमें हम बना रहे हैं क्या? सी पोर्ट बना रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं. चाइना ने तो एयरपोर्ट बना दिया है, तो आप देखते होंगे ना व्हाट्सएप पे, गूगल पे आते हैं. तो वी आर डैमेजिंग. इफ द वर्ल्ड, अगर इसी तरीके से if the world keep on creating pollution, making nature unnatural, what would happen? The world stays on its current path to exceed 2 degrees. अभी तक so far there is a rise of 0.7% temperature, degree Celsius temperature. There is rise of because of the pollution up to date. There is a rise of 0.7 degrees Celsius temperature. By the way, if it reaches to 2%, यानी 2 degrees Celsius, that is very near. To reach 2 degrees Celsius is very near. What happened? An abrupt jump in melting and ice loss around 260, 2060 है, nearly doubling its contribution to sea level rise by 2000 by the end of century. अगर हो गया तो सेंचुरी तक हमारा सी राइज हम डबल कर देंगे. नाउ यह थोड़ा वाटर की बात हो गई. ऑक्सीजन विच यू एंड मी ब्रीथ, एंड दैट इज द मेन कंपोनेंट दैट मेक अस लाइफ. हवा नहीं है, 3 मिनट आपकी नाक मुंह बंद कर दिया जाए, 3 मिनट बंद गया, व्हाट वुड हैपन? खत्म हो गया. लोग तमाम फिल्में देखते हो कैसे किल करते हैं, मर्डर कैसे करते हैं, मुँह में तकिया सांस बंद कर दिया, मर जाते हैं, देर तक नहीं होती. तो विदाउट ऑक्सीजन नो लाइफ. क्या सोर्स है? अब आपसे पूछा जाए कि हमने पहले बताया देयर इज 21% ऑक्सीजन इन द एयर. व्हाट इज द मैक्सिमम सोर्स ऑफ ऑक्सीजन? तो हमने दिखा दिया, लेकिन आपसे पूछना था. तो देखने के पहले यू अप्लाई योर माइंड. इन द अंटार्कटिक लेक्चर आई टोल्ड यू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन इन ocean. Plankton means plants. Plants synthesize their food utilizing solar energy with the process of photosynthesis. जैसे आप खाना बना खा लेते हैं, प्लांट क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक है. सूरज की रोशनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिला करके C6H12 वो सकता भोजन बना लेते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? और in the process of it they release oxygen. So since oxygen is 71%, so phytoplankton remain in 71%. The maximum oxygen we get from ocean, not from terrestrial plant, not from. Suppose we cut entire terrestrial plant, what will happen? Life will become tough, but life will never go up. रहेगी. Oxygen is there. But plants remain in 29% continental area. We will get oxygen through oceanic plant. Terrestrial plant 28%. Another source 2%. This is oxygen. Now, how much oxygen comes from ocean? At least half of Earth oxygen comes from the ocean. कई किताबों में सारी करेक्ट आपको मैं बार again and again I repeat, since you are not a BSc MSc students or UG PG students, you are preparing. So try to read textbook. आप renowned author, try to find, कोशिश करें कि आप कोई फॉरेन ऑथर हो. जियोग्राफी तो फॉरेन ऑथर, हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री तो अपना ही पढ़ सकते हैं,
इन जियोग्राफी आपको फॉरेन ऑथर की पढ़िए, यहाँ अच्छे भी ऑथर इंडियन भी हैं, उनको पढ़िए, उल्टी सीधी के लोगों को मत, इस सीरीज मत पढ़िए। अबाउट 50-80% फ्रॉम आर्सेनिक प्लैंकटन, प्लैंकटन समझ गया, जो आर्सेनिक प्लांट है। प्लांट प्लैंकटन तालाब में भी होते हैं, नदी में भी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन मछलियाँ खाती हैं, कीड़े खाते हैं। ड्रिफ्टिंग प्लांट जो इधर से उधर, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया दैट कैन फॉलो, बैक्टीरिया भी, देयर आर सम सर्टेन बैक्टीरिया photosynthesize and release oxygen, and one of the most important bacteria, क्वेश्चन और आपका बन गया, मेरा पढ़ाने का ही स्टाइल है, सबका अलग अलग है कि हम कहाँ क्वेश्चन आपका क्रिएट हो रहा है। वन पार्टिकुलर स्पीसीज प्रोक्लोरोकॉकस, दिस इज बैक्टीरिया, प्रोक्लोरोकॉकस is the smallest photosynthetic organism on earth, but this bacteria produces up to 20% of the oxygen in our entire biosphere. Biosphere means that is a sphere where oxygen dependent life exists. That is higher percentage than all the tropical rainforest on land. अब ये बैक्टीरिया इतना पैदा करता है कि रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहा है। ये आपका बैक्टीरिया क्वेश्चन बन गया। नाउ एक आदमी को कितना चाहिए? 20% इन एटमॉस्फेयर, 21% हम सांस ले रहे हैं, ब्रीद इन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन, आपने दो वर्ड सुना, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन सुना, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन भी सुना होगा। तो ब्रीदिंग, देयर इज डिफरेंस। ब्रीद, हमने एक बार सांस लिया, हाउ मच एयर वी टेक, हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एयर। एयर में कई एयर गैसेज हैं, यू नो, एयर में देयर आर सो मेनी गैसेज। एयर में हम लिया, हाउ मच, एक वन ब्रीथ में कितना ले रहे हैं? एक बार में, एक मिनट में 12, 15, 12, 16 ब्रीदिंग करते हैं हम। एक बार में वी टेक वन टाइम 500 मिलीलीटर। ऑक्सीजन कितना गई? 20 या 21%। जब हमने एक्सहेल किया, ऑक्सीजन लंग में गई, लंग के बाद वापस आ गई, सारी गैसेज वापस गई, एक्सेप्ट 5% ऑक्सीजन, 5% ऑक्सीजन दैट गोज इन द ब्लड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन। एक क्वेश्चन लास्ट वाले बहुत अच्छा किसी बच्चे ने पूछा था, हमने बताया था हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, उसने लिखा है हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। वो था कर हम लिख के लाए थे, करेक्ट करना कर दिए। वो अलग अलग दशाएं हैं उसकी, दोनों ट्रांसपोर्ट भी करता है और कैरीज भी करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, करो मैंने बड़ा अच्छा तो कहता। ऐसे क्वेश्चन में हमें भी मज़ा आता है, क्योंकि जब भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, निगेटिव बोलेंगे या हमारी गलती को थोड़ा सा पॉइंट आउट, तो हम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव। अगर आप निगेटिव नहीं आपके मन में है तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते कभी। हमें लेक्चरर, हमको पढ़ना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। नाउ तो हमने 5% ले ली, तो हाउ मच ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन एक्सहेल, मतलब जो बाहर हवा निकली, 15%। मेरी समझ आई? तो प्योर ऑक्सीजन वी टेक ओनली 5%, एंड टोटल इज अबाउट 550 लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन ए डे। हमको इतनी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन एक दिन में चाहिए। नाउ वेयर इज द, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन? फर्स्ट लेट मी टेल यू, कंट्री इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन। पहला, फॉरेस्ट इज रशिया, इट इज कॉल्ड स्पेस टैगा, टैगा सुना है। अमेजॉन प्रोड्यूसेज अबाउट 6% ऑफ द ऑक्सीजन करेंटली बीइंग मेड बाय द प्लांट। अमेजॉन तो सुना, काफ़ी ऑक्सीजन रिच एरिया है, फायर भी हो रही है, आग भी लगी वहाँ पे। अब एक चीज़ बताया, आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी, द प्लेस वेयर वी लिव दैट इज आवर होम, दैट इज आवर होम और हैबिटेट। ये आपको टर्म जानना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है इसको। इन्वायरमेंट, इसमें सब कुछ है। Ecology is Greek word, oikos means and logos. Oikos means home, logos means to study or to discourse, study about the home. A biological science which deals with complex interaction among organism and between the organism and their environment. इसको क्या बोला? Yeah, forget this one. Simply, study of home of any organism. स्टडी ऑफ होम ऑफ आर हैबिटेट ऑफ टर्म्ड एज इकोलॉजी। अब ऑर्गेनिज्म आ गया, तो आपको यू हैव टू हैव वेरी क्लियर, यू हैव टू हैव बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। ऑर्गेनिज्म आएगा, अब इससे पहले बता दो, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट,
आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी सब कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इन्वायरमेंटल का पेपर आया है, इन्वायरमेंटल पे क्वेश्चन आया, बट यू डोंट नो व्हाट इज इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट? सीधे सीधे लिखा हुआ है, सराउंडिंग आर कंडीशन, सराउंडिंग आवर सराउंडिंग आर कंडीशन, कंडीशन क्या है? इन विच ए पर्सन, एनिमल आर प्लांट लिव्स आर ऑपरेट्स। किसी भी सराउंडिंग में वी आर लिविंग इन एयर सराउंडिंग, फिशेस इन एक्वेटिक सराउंडिंग, अंडरग्राउंड एनिमल्स अंडर सॉइल, इन डेजर्ट, वो सराउंडिंग उसकी हो गई, ठीक है। इसको तो सराउंडिंग आर कंडीशन। अब इकोसिस्टम, एक शब्द आ गया इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्वायरमेंट क्या? सराउंडिंग आर कंडीशन इन विच एनिमल, पर्सन आर प्लांट लिव एंड कोऑपरेट। Environment in which plants and animals live. Environment may be different type. If it is water, aquatic ecosystem, right? If it is forest, forest ecosystem. If it is desert, desert ecosystem. If it is cave, cave ecosystem. If it is river, river ecosystem. हम क्यों बता रहे हैं इसको? कि you and me, 7.9 billion population, we have destroyed our ecology, यानी घर, environment and all ecosystem, हमने सब बर्बाद करके रख दिया। The ponds in my village where I use, not me, all the villagers of my class fellows, they used to take bath in pond, natural pond. In 68, 70, 66, 68, 70, during childhood, when we were studying in Midirai, in that pond, nearby that pond we cannot stand, because of the polluted black, bad smell, full of polluted material, pollutants. हम नहीं लिख सकते, हमने सब अपना बर्बाद। So many lakes, आप सब लोगों ने lakes देखी होगी, lakes have been dried, that had all the, most of the lakes have been brought under plow, यानी खेती में काम आने लगी। जिन लेक में आपने देखा कुछ उगता था, प्लांट उगता था कुछ, वहाँ स्नेल्स और सीपी पाई जाती थी, घोंघा और सीपी, यूनियोपाइला, वो सब खत्म हो चुके हैं। पानी में क्या, हमारे पास वेल कुआं होती थी, कच्ची कुआं, वी हैव लास्ट। ये हमने सब अपना पूरे इन्वायरमेंट को बंद खत्म कर दिया। ग्रास में जो एनिमल रहते हैं, जो जान, ग्रास इकोसिस्टम, लायन तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहेगा ना, वो एक्वेटिक में नहीं रहेगा। तो दीज आर इकोसिस्टम well managed, well structured and well architectured by nature to meet the requirement of animals living in that eco. अगर पानी में रह रहा तो नेचर ने उसको सब खाना पीना रहना ब्रीडिंग तक का दे रखा है, ऑक्सीजन हवा पानी कि वहाँ पे रह सकते हैं, नेचर ने दिया है। बट यू एंड मी, मैन, सब ने बर्बाद किया। तो किसने? ये क्या हुआ? एंथ्रोपोजेनी, यानी पोल्यूशन क्या है? क्रिएटेड बाय मैन, विच वी कॉल एंथ्रोपोजेनिक, ये मैन मेड, दिस इज पोल्यूशन इज मैन मेड। नाउ अब ऑर्गेनिज्म बताया था ना, ऑर्गेनिज्म आपको जानना पड़ा। ऑर्गेनिज्म एक स्लाइड पीछे दिखाई थी, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जेनेटिक मटेरियल से टिश्यू बना, सेल बना, टिश्यू बना, बनता चला गया और उससे प्लांट में। तो उसकी डिफाइन इन बायोलॉजी, एन ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टिग्यूअस लिविंग सिस्टम, यानी सेल जो है, जो सेल बना, सेल एक लगातार जुड़ता चला गया, लिविंग सिस्टम बन गया, उसमें सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइस सब बनते चले गए, लिविंग सिस्टम सच एज एनिमल, प्लांट, फंगस, आर्कियन। तो ऑर्गेनिज्म में भी फंगस भी है, प्लांट भी है, हमारा एनिमल भी है। ऑल ऑर्गेनिज्म का करेक्टर क्या होना चाहिए? दे आर लिविंग। द लिविंग करेक्टर क्या है? कैपेबल ऑफ सम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, छू दो या हार्ट टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, एयर से वो उनको सेंसिटिविटी होती है। दे एस्केप फ्रॉम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिप्रोडक्शन करते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड होम्योस्टेटिस विच मे बी अ प्रोक्रेटियन। चलिए उतना जानिए। नाउ अब पॉपुलेशन पूछा जाता है आपसे, तमाम पॉपुलेशन, जेनेटिक पॉपुलेशन, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आते हैं और आपको राइटिंग में भी नहीं आते। तो आपको आजकल जो
इंटरव्यू में सब तरह के लोग एक्सपर्ट में पूछ लो व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन बायोलॉजी ए पॉपुलेशन इज ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ही पॉपुलेशन बन गया। ए पॉपुलेशन इज ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज which live in particular geographical area and have the capability of, अब नहीं समझे आप और इजी कर देता हूँ। सेम स्पीसीज लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया, यू एंड मी आर होमो सेपियंस, मैन का जीनस क्या होमोजीनस है और सेपियंस स्पीसीज है। बात समझ में आ गई? जैसे मटर पाइजम सटाइबम, पाइजम जीनस है और सटाइबम है। टाइगर बंगाल टाइगर, पैंथीरिया टाइग्रिस, पैंथीरिया टाइग्रिस, पैंथीरिया लियोसेर हो गया, लायन हो गया, ठीक है, ये स्पीसीज हैं। तो मैन यू एंड मी वी लिव वेयर इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकली, कहाँ रहते हैं? लैंड पे ही तो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में। हम पानी भी कैन नॉट लिव इनसाइड द वाटर और अंडर द ग्राउंड वाटर, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन। अब आप पॉपुलेशन काउंट कैसे करते हैं? पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एन यूनिट एरिया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे 100 आदमी आपके गांव में पॉपुलेशन करनी है, पूरे ज़िले में पॉपुलेशन करना है, तो ये तो सेंसस कर लेते हैं, कीड़े मकोड़े तो नहीं गिन सकते ना। तो आप 1 बाई 1 मीटर एक यूनिट एरिया बना लीजिए, उसमें गिन लीजिए कितने कीड़े हैं, मिट्टी में बाहर कितने हैं, पॉपुलेशन इंडिविजुअल मिल गए, मल्टीप्लाई के लिए कितने हैं, तो दैट बिकम्स पॉपुलेशन। आप यूनिट एरिया में ले लीजिए। नाउ कम्युनिटी ए ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्लांट्स ऑफ एनिमल्स ग्रोइंग आर लिविंग टुगेदर। अब यहाँ ग्रुप एक दूसरे पे जो प्लांट लिव करते हैं, जानवर लिखते हैं, जैसे लायन तो अकेले नहीं रहता फॉरेस्ट में, वो क्या खाएगा? खरगोश खाएगा या जयकाल को खा लेगा या डॉग को खा लेगा। जयकाल क्या खाएगा? जयकाल कार्निवोरस है, वो आपका फल तो खाता नहीं है। और रैबिट क्या है? हर्बीवोरस है। डियर हिरण क्या है? हर्बीवोरस है। तो पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं दिस इज काउंट। नाउ ये थोड़ा बताना जरूरी था मुझे, क्योंकि अर्थ को बर्बाद किसने किया, हाउ टू कीप अर्थ लाइवेबल, उसी पे चल रहा है। टोटल फाउना अभी एस्टिमेट किया गया है पूरे ग्लोब पे 8.7 मिलियन यानी 87 लाख एस्टिमेटेड है स्पीसीज, जिसमें 6.5 मिलियन हमारे अर्थ पे और 2.65 लाख अर्थ पे ज़मीन पे और 22 लाख हमारे पानी में एस्टिमेट की गई हैं। लेकिन ये तो एस्टिमेटेड है, टोटल सो फार नोन टू अस, हमको कितना पता है अभी तक, साइंटिस्टों ने कितनी खोज कर रखी है, अभी तक हमें 17 लाख नियर अबाउट 17 लाख स्पीसीज हमें पता है, जिसमें 70% तो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, बगैर रीढ़ की हड्डियों के हैं, और 10,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर and many species are becoming extinct every year. Why? Because of anthropogenic factor. हम इस पे नहीं जा रहे हैं, ये बता दिया। Now, अब now come to एक थोड़ा से जानने के लिए, चूँकि you are preparing for, थोड़ा इंडिया के बारे में पढ़ चुका होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा let me explain it. Indian scenario see, total area geographically 329 million hectare. आप स्क्वायर किलोमीटर 32 कुछ बोलते हैं ना, it is, if converted in hectare, it is 329 million hectare and accounts 2.5% of total geographical area, यानी 510 million स्क्वायर किलोमीटर का ये 2.4% होता है। एंड 1.39 कल हमने देखा, 1.39 कल का डेटा है, वर्डोमीटर में देखा था, 1.39 मिलियन ये जो है बिलियन पॉपुलेशन, आउट ऑफ दिस 6% ऑफ द वर्ल्ड, 1% लिव इन इंडिया, और इसमें 6 में से एक हिंदुस्तान में रहता है। एंड सपोर्ट्स 17% ऑफ पूरे वर्ल्ड का 17%, इंडिया सपोर्ट्स 17 एंड एनिमल वी सपोर्ट 52, पूरे विश्व में जितने एनिमल हैं उसका 15% हमारे पास है, लाइक वो है। एंड 7.5% ऑफ जो पूरी स्पीसीज बताई कि 17 लाख हमें पता है, उसका 7.5% हमारे इंडिया में। इसीलिए इंडिया इज नोन एज कंट्री ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी, राइट? कंट्री ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो है ही है, इट इज कंट्री ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी। नाउ इंडिया अकाउंट फॉर 4% वाटर रिसोर्स, हमारे पास वाटर रिसोर्स है,
प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ 70% इज एग्रीकल्चर। हमारी जो 70% पॉपुलेशन है, अर्बन कितनी है, नियर अबाउट 75%, जिसमें 70% एग्रीकल्चर पे, बाकी 5% सब सर्विस बिजनेस सब में रहते हैं। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज एग्रीकल्चर। हिंदुस्तान में, इंडिया में जितनी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। दे गेट फीड स्टॉक फ्रॉम देयर, फीड स्टॉक इज ओनली एन। कोई फैक्ट्री का नाम लो, इंडस्ट्री का नाम लो भाई, आपसे क्रिएट करो ना क्वेश्चन, तो आंसर दो। किसी इंडस्ट्री का नाम लो बेटा, पतंजलि ही ले लो, क्या है, सब प्लांट बेस्ड है। डाबर, हिमालय, हमदर्द, सब प्लांट बेस्ड है। होम्योपैथिक क्या है, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड। कोई होम्योपैथी की दवा केमिकल नहीं है। वो जो गोलियां आप पाते हैं ना, उसमें खाते हैं, गोलियों में वो ऐसे एक ड्रॉप पोटेंशियल डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं, वो एक्सट्रैक्ट ऑफ ओनली प्लांट एंड एनिमल्स। काकरोच को बॉयल करके निकाल करके डाल देते हो, वो अस्थमा के लिए आपकी बीमारी दूर कर देता है, आपको पता नहीं सब बातें। होम्योपैथ का जो पोटेंसी है एनिमल एंड प्लांट का ही एक्सट्रैक्ट, बिच्छू से निकाला जाता है, तमाम चीज़ों से निकाला जाता है। और ले लीजिए, तमाम दवाओं को ले लीजिए, कोई भी फैक्ट्री लीजिए, लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड। प्लास्टिक किससे बनता है, आजकल आलू से बनाया जा रहा है, आलू की सेल्यूलोज से, स्टार्च से प्लास्टिक बनाया जा रहा है। और तो और अभी बायोडीजल पे हम एक लेक्चर देंगे। यू गेट पेट्रोल एंड डीजल इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, वी इम्पोर्ट इट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। नाउ द नेक्स्ट अल्टरनेट इज बायोडीजल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स एक समय आएगा तो हम बायोडीजल या फ्यूल जो हम अपना ग्रो करेंगे खेत में, किसानों के नाम ग्रो, एक हमारी हम बताएंगे नहीं है। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ इज एग्रीकल्चर। एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज 175 million. Total area in the world, out of 510 million square kilometer in the world land, 1.5 billion hectare is under agriculture world में। और इंडिया it is 175 million hectare, not billion, 175 million hectare, and this is reducing and reducing and reducing. Population is increasing, but our agriculture land is decreasing. Whereas we need more and more food. Even then we are getting our land being reduced by the development process, urbanization, industrialization, जो भी आप कर लीजिए, इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, सारे हम डैमेज करते चले जा रहे हैं। हमने कहाँ हो रहा है, एवरीथिंग इज एंथ्रोपोजेनिक एंड हैपनिंग ऑन अर्थ इटसेल्फ। कहाँ पर हो रहा है, अर्थ पे ही हम कर रहे हैं। एंड 40% इंडियन इकोनॉमी हमारे, कहते हैं कृषि हमारी क्या है, आर्थिक रीढ़ है हमारे भारत की, कृषि प्रधान देश है। 40% ऑफ इंडियन, 40% माइंड इट, एंड 30% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर से ही होता है हमारा एग्रीकल्चर। ये एक थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दिया, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेक्चर का पार्ट नहीं, बट आई वांटेड टू ब्रीफ यू। नाउ दिस इज द पार्ट, इंडियन पॉपुलेशन फूड प्रोडक्शन एट ए ग्लांस। यू सी इन 1950, जस्ट आफ्टर independence in 1947, in 1950 total population was 36 crore। कितनी थी, 36 करोड़ थी। अभी कितना हो गया, नियर अबाउट आज 2001 70-72 साल शायद हो गया। इन लैक्स ऑफ ईयर्स, इन मेनी लैक्स ऑफ ईयर्स, टोटल पॉपुलेशन ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, वर्ड बता दिया 7. Indian population was 36 crore, but in 70, after a gap of 70-71 years, we have added 1 billion, 100 करोड़ हमने जोड़ दिया उसमें, हम हो गए हैं 139 करोड़। एंड दैट टाइम आवर फूड प्रोडक्शन वाज 50.8 मिलियन टन। हमारा इसका दूना नहीं हो पाता था, होना चाहिए 72 नहीं हो पाता था, 50। और
उन दिनों आप तो पैदा नहीं हुए, तो हम भी नहीं पैदा हुए, 2 साल बाद पैदा हुए हैं। उन दिनों बाहर से इंपोर्ट हुआ करता था फूड ग्रेन, दिस इज फूड ग्रेन इंपोर्ट। 4.8 मिलियन टन बाहर से इंपोर्ट होता था। हमें याद है 68 में जो इंपोर्ट होता, 66 में हमको मक्का और गेहूं आता था। मरद लोग कहते थे, रसिया वालों ने इसका अरक निकाल के तब इंडिया में भेजा, और इट वाज ट्रू। हमको मरा दाना सब उसका मेन पार्ट निकाल के तब इंडिया में कंट्रोल, और इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कंट्रोल सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ ग्राम प्रधान। और तब हमारे पास बफर स्टॉक नहीं था। बफर स्टॉक, बफर मतलब बफर स्टॉक मीन्स सपोज आपके घर में पापा ने कुछ सामान लाया, घर में चीनी ले आया, तो मदर जो सोचती है फ्यूचर को देख करके थोड़ा छिपा के रख देती है, राइट। छिपा के कहीं घड़े में ऐसा छिपा के बच्चे का हाथ ना पहुंच पाए, या ऊपर कहीं लगा देगी या छिपा देगी, कोई गेस्ट आने पे सूजी हलवा बना के खिलाया जा सकता। दैट इज बफर स्टॉक। तब हमारे पास नहीं था। इवन 60 में, दिस इज डेटा ऑफ एट एवरी 10 ईयर्स गैप, एट एवरी 10 ईयर्स 50, 60, 70, 80, 10 साल के इंटरवल का है। 60 में इतना हो गया, हमारा बफर स्टॉक थोड़ा बढ़ने लगा। बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन 1968, 70 में क्या हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ? आवर प्रोडक्शन पॉपुलेशन रोज 54 करोड़ एंड फूड प्रोडक्शन गॉट जस्ट डबल। इसके पॉपुलेशन का जस्ट डबल, देख रहे हैं, जस्ट डबल हो गया। इवन फूड ग्रेन इंपोर्ट हमारा 7 अभी रहा, और बफर स्टॉक यहाँ खत्म हो गया। बट इट वाज सी, यू सी 2000 एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रोज टू 1 बिलियन। जब हमारी 1 अरब हो गई थी 2000 में, तो हमारा फूड प्रोडक्शन कितना हो गया था? 201 मिलियन टन्स। एंड बाय दैट टाइम वी स्टॉप्ड फूड ग्रेन। हमारे को कोई ज़रूरत नहीं थी फूड ग्रेन इंपोर्ट की। इंडिया गॉट सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, बिकेम सेल्फ रिलायंट। नो, इट वाज, कंट्री वाज कॉन्फिडेंट, कोई जरूरत नहीं, इंपोर्ट नहीं हुआ। एंड आवर बफर स्टॉक रोज टू 40। अभी हमारे पास 50 मिलियन टन के पास हमारा बफर स्टॉक में ड्यूरिंग वार, ड्यूरिंग कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी, वी कैन फीड आवर पॉपुलेशन। इसको हमेशा रखा जाता है। अब इसी को देखिए, अभी 13 में इतना हो गया, 13 पीछे नहीं जा रहा। अब आप देखिए 1920 में, लास्ट ईयर पॉपुलेशन वाज 137 करोड़। आवर फूड स्टॉक वाज, प्रोडक्शन वाज 297 मिलियन टन। इवन इस टाइम पे जो हमारे स्टेटिशियन हैं, अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने गलत एस्टिमेट किया, कम किया था। बट थैंक टू आवर फार्मर्स, दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। एंड इन 2021 हमारा, अभी हमारा इतना एक्सपेक्टेशन है, 21 में इतना हमारा है। बट वेरी पिटी पार्ट इज फूड ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, still our country is not able to manage, not able to store in a proper way. And all of you might have seen the food grain rotting on railway stations, FCI outside the building, monkeys are eating, rats are eating, and by rain. आप अखबारों में पढ़ते होंगे। एक बार तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया था कि गरीबों को बांट दो। वाई? हाई कोर्ट नो डाउट हमारी न्यायपालिका है, हम वी गिव ऑनर, पर उल जुलूल तो जजमेंट नहीं देना। वाई रॉटन फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर? दे आर आल्सो लाइफ यार, वो भी जीवन है, उनको क्यों मारने? रॉटन फूड मीन्स दे विल आल्सो डाई, रॉटन बाय बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वाई टू किल देम? तो एनीवे वो कभी कभी जल्दी में डिसीजन हो जाते हैं। नाउ ये समझ में, इसका रेलेवेंस है अर्थ पे। अर्थ में क्या कि अब दिस इज द कंडीशन बिकॉज ऑफ द बल्जिंग पॉपुलेशन, वी हैव टू इंक्रीज आवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड वी हैव टू ब्रॉट आवर लैंड अंडर प्लाउ, मेकिंग मतलब डिफॉरेस्टेशन, डूइंग डिफॉरेस्टेशन, कवरिंग लैंड, कवरिंग रिवर, कवरिंग पॉन्ड, कवरिंग पोल्स। हम सब जगह कटाएंगे तब हमारी लैंड को काबू में लाएंगे, तब हम एग्रीकल्चर लाएंगे। अदरवाइज वी कैन नॉट फिल द बेली ऑफ आवर पब्लिक। नाउ
ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन 60-70 में जो हमने बताया था, हाउ, कहाँ हम गरीब थे, हमारे पास राशन नहीं था। अब ग्रीन रिवोल्यूशन रिलाइड ऑन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, लैब टू लैंड प्रोग्राम, रिसर्च जो किसानों तक गया, यूज ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज, हाई यील्डिंग, अर्ली मैच्योरिंग। जो वैरायटीज जब बन गई, जो वैरायटीज बनने के बाद इसको हमने अडाप्ट किया तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 70 में बढ़ गया, राइट। लेकिन बढ़ा तो दिया, व्हाट वाज द इल इफेक्ट, उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन केम एट द एक्सपेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। दिस फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज एट द एक्सपेंस, हमारे इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ को बर्बाद करके मिला। क्यों ऐसे बर्बाद हुआ? इकोसिस्टम ने बर्बाद किया, तालाब में खेती करना शुरू कर दिया, नदी बांट दिया, लेक बांट दिया। ह्यूमन हेल्थ, लॉट ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड, नॉट ओनली यूरिया, फर्टिलाइजर या पोटाश, ये NPK, लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, DDT, BSC, organophosphate, organochlorine were given to farmers for use, and all these chemicals created human health hazard in the environment. Our environment is, एक चीज बताना, our environment is air, water or soil. Environment बोला जाए, our environment is air, water, soil, food and vegetable. ध्यान दीजिए, वो भी environment है। Our environment is air, water, soil, फूड एंड वेजिटेबल में कीड़े होते नहीं, तो उसका एनवायरनमेंट क्या हो गया? फ्रूट। स्टेम में भी होता है उसका एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल्स ऑफ टॉक्सिसिटी क्रिएटेड बाय केमिकल। नाउ नेक्स्ट, तो विद दिस अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो क्या होगा? वी कैन नाइदर फीड आवर प्रेजेंट पॉपुलेशन, आज की जो पॉपुलेशन, we can neither feed our present population with the past studied technology जो कल की थी, nor we can feed our tomorrow's जो कल की आने वाली population with today's जो आज की टेक्नोलॉजी है। इससे टेक्नोलॉजी डेली बदल रही है। हम दोनों ना तो हम पहले से खिला सकते हैं, ना कल आने वाली पॉपुलेशन को आज की टेक्नोलॉजी से खिला सकते हैं। बिकॉज क्यों नहीं खिला सकते? Because Indian population is growing at the rate of 1.2 to 2%. हमारी पॉपुलेशन हर साल 1 से 2% के रेट से बढ़ रही है, वेयर एज द फूड प्रोडक्शन 0.5 to 1% के रेट से बढ़ रहा है हमारा फूड प्रोडक्शन, क्योंकि लैंड वी आर गेटिंग रिड्यूस्ड, एग्रीकल्चर लैंड हमारी खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट, ग्लोबल पावर्टी, इतना देखिए ग्लोबल में पावर्टी कितना, इतना entire world is producing sufficient and large quantity, entire world is producing sufficient and large quantities of population, still 820 million यानी 82 करोड़ people are victim of hunger। एक लेक्चर अगर त्रिपाठी जी कहें तो एक जीरो हंगर पे एक हमारे पास प्रेजेंटेशन हम देंगे, छोटा है 30-40 मिनट का, जीरो हंगर प्रोग्राम क्या है। इसके बावजूद भी 82 करोड़ पीपल आर विक्टिम ऑफ हंगर, एंड आउट ऑफ दैट 1/3 ऑफ इज इन इंडिया। 82 करोड़ का एक 27 करोड़ हमारे देश में है, हमारे देश में। अब देखिए उनको हम खिला सकते हैं, फिर भी जैसे बता ना राशन हमारा 4,500 फूड सड़ता जा रहा है। 1.3 बिलियन टन फूड, बिलियन टन, अरब टन पर ईयर स्पॉइल्ड इन वर्ल्ड, एंड दिस क्वांटिटी कैन फिल द बेली ऑफ 50 करोड़ लोगों को खिला सकते, जो बर्बाद कर दिया जा रहा है। और इन इंडिया 2.1 करोड़ फूड ग्रेन ये स्पॉइल्ड इन इंडिया दैट कैन फिल द बेली ऑफ 20 करोड़। हमारे दार आपने देखा, बता दिया। अब बर्बाद कैसे करें? कि आरिफ साहब ने तो कहा और बंदर खा जा रहे, चूहे पा रहे। अरे आपको खाना बनाने का आज भी मेजरमेंट नहीं है। हमारे घरों में हमारी बहुएँ बनाती हैं, चाहे घर में लेडीज बनाती हैं, एवरी डे एक्सेस हो जाएगा लेकिन शॉर्ट नहीं होगा। आप जितना कम खाएंगे, ईट लेस लिव लॉन्ग, मेरा फार्मूला है, दिस आई एम गिविंग, ईट लेस लिव लॉन्ग, ये मेरा फार्मूला है और बहुत सही है। हालांकि डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया, मैं अपने ईट लेस लिव लॉन्ग, कम खाओ ज़्यादा जियो।
लेकिन घरों में क्या है, उल्टा है। दे आर लिविंग टू ईट, दे आर लिविंग टू ईट, दे आर नॉट ईटिंग टू लिव। इसीलिए मैंने बनाया ईट लेस लिव लॉन्ग। डेली फेंक दिया जा रहा है, डेली फेंक दिया जा रहा है। आपको और एग्जाम्पल, अभी हाल में कोई एनी वन ऑफ यू अटेंडेड सब मैरिज पार्टी, एनी फ्रैंकली रेज योर हैंड, किसी ने शादी अटेंड की अभी हाल में? देखिए त्रिपाठी जी गए, पूछिए इन्होंने क्या किया, हम बता दें क्या क्या खाया। राइट फ्रॉम फ्रूट चाट टू चाट, तो फिर रोटी चावल, फिर रोस्टेड फोस्टेड से, फिर बाद में फिर हलवा गाजर। आपने सब खा लिया, चाउमीन भी खा ली, चाट भी खा ली, फ्रूट चाट भी खा ली। देन आफ्टर दैट व्हेन योर बेली इज फुल, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बेली एंड स्टोमक। बेली एक्सटर्नल अब्डोमिनल पार्ट इज बेली। बेली डांस करते नहीं बच्चे जो हमारे तमाम आर्टिस्ट हैं। स्टोमक भी इंटरनल ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अंडर द इनसाइड द एब्डोमिनल स्टोमक। अब आप देखिए प्लेट में उठा लिया, सारा खाने के बाद कोई आइटम नहीं छूटेगा। सलाद भी आएगी, फिर सलाद की तरफ जाएंगे, चावल रोटी, तंदूरी भी, मिस्सी भी, रुमाली भी, सब्जी, तरह तरह की सब्जी। द मेक हिलक इन प्लेट, प्लेट में पूरी पहाड़ी बना लेते हैं। What happens? It is very pity-stricken. Only hardly 1/4 or 30% of that portion is eaten. Rest of the food material is spoiled. You throw, आप फेंक देते हैं। आप देखिए कितना फेंकते हैं। तो दिस इज आवर टेक्निक। ये हमें थोड़ा से नहीं, चलिए अगर एक बताता हूँ, इसीलिए कहता हूँ इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स टुडे, ये सारे कल्चर हमारे देश में नहीं चल रहे हैं, सारे कल्चर इफ एग्रीकल्चर फेल्स टुडे आर कल्चर विल फेल टुमारो। सारे कल्चर फेल हो जाएंगे। इसलिए वी हैव टू, हमको अर्थ के इस पर लाइव बनाने में कर एनीवे। अब द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर इट वाज इंट्रोडक्टिव पार्ट। समझ में बात, जितना इंट्रोडक्टिव बताया इसके बेसिस पे आप समझोगे कि व्हाट वी हैव डन ऑन द प्लेनेट अर्थ। टाइम बता दे रहे, टाइम हमको तो बताइए। व्हाट वी हैव डन ऑन द प्लेनेट, अभी शायद फिर 25 to 30 मिनट वी कैन टेक। 25 ह्यूमन डिवास्टेशन ऑन अर्थ। किसके लिया? ह्यूमन डिवास्टेशन ऑन अर्थ फॉर सेल्फ या एंथ्रोजेनिक प्रॉब्लम। क्या किया? वी हैव स्पॉइल्ड एयर, अभी बताएंगे। वाटर वी हैव स्पॉइल्ड, सॉइल वी हैव स्पॉइल्ड, माउंटेन वी हैव स्पॉइल्ड, फॉरेस्ट, फाउना हम ब्रैकेट में वल्चर लिख दिए, वन एग्जाम्पल, एंड फ्लोरा, क्रॉप्स एंड इकोसिस्टम, हमने सब ऑलमोस्ट ऑल, अभी इसके अलावा भी तमाम चीज़ें हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। कैसे? फाउना में एक एग्जाम्पल हो रहा, फाउना में वल्चर जानते हैं? गिद्धराज। आजकल कहीं दिखाई पड़ते हैं गिद्धराज? रेयरली। और आप लकी होंगे अगर देख भी लिया होगा तो। हमने तो अभी बहुत सालों से नहीं देखा। आप यू आर फॉर्चुनेट इनफ। हाँ, बहुत दिनों बाद, 10 दिन पहले, बहुत दिनों बाद। एनीवे एवरी संडे आई यूज्ड टू गो माई विलेज। कल नहीं गया था, आपके लेक्चर के लिए तैयारी कर रहा था, अब कल जाऊंगा शाम को। तो वल्चर नहीं दिख रहे हैं। वाई? इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इन 1980, यानी जस्ट 40 years बैक, टोटल वल्चर वेयर 80 मिलियन, 8 करोड़ थे हमारे देश में, 8 करोड़। एंड इन 1991 साइंटिस्ट डॉक्टर विभू प्रकाश, 10 साल बाद 80 में 8 करोड़। इन 1980 में हमने सर्विस ज्वाइन की थी, और इन 1990 और जस्ट आफ्टर विभू प्रकाश, साइंटिस्ट ऑफ बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, ऑब्जर्व ऑल ऑफ सडन देयर पॉपुलेशन हैज डिक्रीज ड्रास्टिकली, दिख नहीं रहे थे। एंड आफ्टर almost all possibilities of their death, he could not conclude. Then he took the help of foreign scientist Dr. Lindsay. So he was able to tell the region in 2003. देखिए 1990 में पता चला
any just after 11 years he could come to the conclude, and this was nothing. Main factor was only one medicine. पूछी जाती है, क्वेश्चन बन गया, देखा है क्वेश्चन बन गया ना, इसीलिए मेरा क्वेश्चन क्रिएट करो. Anthropogenic, it was anthropogenic factor, only one medicine. It was tablet diclofenac, used for the treatment of cattle. कैटल तो बोल नहीं सकते, कहाँ तक है, उनको खिला दिया जाता है, इन्फ्लेमेशन दर्द के लिए दी जाए डाइक्लोफेनाक. तो ही कुड, इट वाज डाइक्लोफेनाक. डाइक्लोफेनाक से क्या हुआ कि डाइक्लोफेनाक, सपोज यू गिव डाइक्लोफेनाक टैबलेट टू योर कैटल, certainly that will die after some time. Or that tablet, one small tablet, 500 gram or 1 gram or 2 gram, that is magnified inside the body. Magnified in the body. Suppose एक बूंद आप पानी, एक बूंद मिट्टी का तेल एक बड़े तालाब में डाल तो क्या हो, मैग्नीफाई पूरे पानी में फैल जाएगा, पूरी बॉडी के में चमक गया. डेथ के बाद when vulture started eating, most of them started dying, and as on today there is 1 lakh. 8 करोड़ से हम कितने पे आ गए 40 साल में? 1 लाख हमारे पास वल्चर है. वल्चर द बेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. वल्चर द बेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ फॉर ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी. क्या करते थे आपका? क्या थे? एक तो वो आपके सड़े हुए मरे हुए जानवर को मार देते थे, खा लेते थे, खाते थे वो, आपका सफाई हो गई. वहाँ बैक्टीरिया वायरस नहीं फैलने देते. एक तो आपकी सफाई करके, दूसरा उनका भोजन होने, 2 काम होता था. इसको बोलते हैं स्कैवेंजर. तो वल्चर इज बेस्ट स्कैवेंजर ऑन दैट, कि ये एक अपना भोजन हो गया, दूसरा आपकी सफाई हो गई. अब आप देखिए तमाम जो जानवर मरते हैं जैसे, कहीं आपको मिलेगा नहीं. और रीजन बिहाइंड नॉट ओनली दिस, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ वल्चर, population of rat and dog have increased. Population of rat and dog has increased. Dog will create rabies and rat will create, क्या बीमारी करता है? Plague. If rat dies during decomposition of bacteria, Yersinia pestis, उसको पिशु एक इंसेक्ट खाएगा, आपको इचिंग करेगा तो प्लेग विल ट्रांसमिट इन योर बॉडी. Plague, the latest plague disaster was in Latur, Maharashtra, few years back. I think 15-20 years back, Latur, Maharashtra में काफ़ी लोग मर गए थे. तो हम क्या कर रहे हैं? We are devastating our earth. की we are making our earth suitable, not suitable, neither for animal, nor for plant, nor for us. हमने अपनी अर्थ को चारों तरफ से बर्बाद करने पे तुले. एनीवे, एक एग्जांपल दिया, बाद में आएगा. नाउ हाउ डू वी पलूट कर रहे हैं पूरा. हम एयर वाटर सॉइल सबको पलूट कर रहे हैं. तो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज पोल्यूशन. डिफाइन पोल्यूशन, सिंपल टर्म, वेरी सिंपल टर्म, is an undesirable change in the physical, chemical and biological change. Pollution is an undesirable change. डिजायर नहीं हो तो नेचर ने सब दिया है पानी को, आप अपने हिसाब से कर दे रहे हैं. अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सेगमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. समझ में बात? फिजिकल अर्थ है, बायोलॉजिकल एनिमल प्लांट है, पानी है, केमिकल, हम इसके सेगमेंट में चेंज कर, विच इज हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ आवर बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में जितने स्पीसीज है ह्यूमन क्लास को, पोल्यूशन में भी आप वाटर, एयर, सॉयल, पोल्यूशन में भी आप पूरा इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, सॉयल. लेकिन इन बायोलॉजिकल टर्म इट इज फूड एंड फूड ग्रेन, फ्रूट एंड फूड ग्रेन आल्सो. नाउ कैसे किया हमने? अब फिर से बाइक में आ गया. इकोसिस्टम बता दिया आपको. इकोसिस्टम क्या है? द इन्वायरमेंट इन विच प्लांट एंड एनिमल लिव, दैट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. यानी फिश का एनवायरनमेंट है वाटर.
तो इन्वायरमेंट यानी वाटर इन्वायरमेंट में फिश रहती तो उसका होगा इकोसिस्टम पूरा, उसका खाने पीने का ब्रीडिंग का सिस्टम है. When it was natural in nature, long back it was natural in nature. But when man came on the scene of earth, when man, समझ में बहुत easy language, when man came on the scene of earth, he started growing crops and plantation, setting up factories and altering the lands. जैसे आया, started growing crops, plantation, setting up factories and altering the lands. लैंड को बदलने लगे, जैसे हम कर रहे हैं डेली, सब पुल बना दे रहे हैं, फॉरेस्ट काट दे रहे हैं, बिजली खंभा जाना है, खराब कर देना है. तो क्या हुआ, प्रीवियसली इट वाज एनियस नेचुरल इकोसिस्टम. पहले क्या था, नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम को क्या हमने कर बदल दिया, ह्यूमन इकोसिस्टम, या एईएस भी कहते हैं, एईएस एग्रो इकोसिस्टम. तो दोनों में डिफरेंस क्या, नेचुरल इकोसिस्टम आज मोर कॉम्प्लेक्स. बहुत नेचुरल अपने बाग बगीचा पुराने देखे, तरह तरह के पेड़, उसमें तरह तरह के जंतु जानवर, उसमें तरह तरह के प्लांट्स उगे हुए रहते थे. वो नेचुरल इकोसिस्टम था. हम एक साथ तमाम क्रॉप बोते थे, अरहर, ज्वार, तिल्ली, सनई, सब एक साथ 7 क्रॉप्स टुगेदर बोते थे, एक साथ बोते थे खेतों में. अब हमने क्या किया, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम शुरू कर दिया. गेहूँ, चावल, सरसों, लिविंग आल. नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट और नेचुरल के नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट, आप बता दें, प्लांट एंड एनिमल की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. तमाम तरह के प्लांट और एनिमल रहते थे. लॉन्ग फूड चेन वाज बिग, यानी कीड़े के लिए भी खाना है, माइट्स के लिए भी खाना है, मक्खी के लिए भी खाना है, कीड़े को खाने वाले हैं, और उससे बड़े कीड़े खाने वाले वहाँ स्नेक हैं, या छोटी छोटी लिजर्ड हैं, इसको खाने वाले बर्ड्स हैं. तो ये फूड चेन हमारी लंबी थी, बहुत लंबी थी. जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो क्या हुआ, हमने फूड सेट सॉर्टिंग कर दिया. गेहूँ जब उगाए, सपोज यू ग्रोइंग व्हीट कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे गेहूँ के खेत में इन व्हीट फील्ड यू विल फाइंड पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट एनिमल, वही रहेंगे और तो मिलेंगे नहीं आपको. लेस कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं रह सकता, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता हमारा. सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, हमने सिंप्लीफाइड क्योंकि हमने इसमें इतना से इंसेक्टिसाइड डाल दिया कि बाकी सब मर गए, सारे जीव जंतु मर गए. दोज ऑर्गेनिज्म कुड एग्जिस्ट which were resistant little bit, बाकी सब चले गए. Develop high degree of ability to move and continuous changing environment. इसको और आसानी समझिए, लिखे से कम समझिए, फोटो ज़्यादा समझिए. ये देखिए ये देखिए, दो में कौन अच्छा लग रहा है, which one you find better look wise and your mind wise. Look wise is good, ब्यूटीफुल है, क्या बढ़िया लाइन्स बनी, क्योंकि दिस इज ह्यूमन इकोसिस्टम. एंड आपको अच्छा नहीं लगा, दिस इज नेचुरल इकोसिस्टम. ये देख रहे एग्रो इकोसिस्टम है नेचर में क्या था, बिग प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, हार्बरिंग वेराइटीज ऑफ एनिमल. प्लांट इज आल्सो हैबिटेट ऑफ सम एनिमल्स, हार्बर प्लेस ऑफ एनिमल्स. तो दीज वेराइटीज ऑफ प्लांट, छोटे बड़े, स्मॉल, बिग, क्रीपर, सब ये सब मिक्स होते थे, कंपोजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, फाउना. बट व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप, प्लांटेशन एंड अल्टरिंग लैंड, जो पहले स्लाइड में बताई, हमने क्या किया, इसको वी क्लियर ऑल दीज, ऐसे बना दिया जमीन. नतीजा निकला कि वी आर ग्रोइंग सम सिंगल क्रॉप, वी हैव लॉस्ट ऑल दीज. इसके साथ साथ प्लांट तो जो हम लोगों ने प्लांट तो ख़त्म किए ही किए. ऑल एनिमल स्पीसीज विच वेयर बेनिफिशियल टू अस, बेनिफिशियल टू ह्यूमन एंड ह्यूमनिटी एंड क्रॉप्स आल्सो, एनिमल आल्सो वी हैव लॉस्ट. ये अभी और डिटेल में आएगा, बहुत चले कल भी इसमें दिखाएंगे. नाउ देख लीजिए, अभी थोड़ा बैन हो गया है. ये किस लिए, फॉर फ्यूल. फ्यूल का क्या है, फ्यूल आइदर इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल कुकिंग के लिए,
electricity, gas, kerosene oil, or this is maximum. This was largely used long back. अभी भी चल रहा है, गाँव में होटलों में ही चल रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं. But it was 1731 when a lady Amrita Devi of Rajasthan hugged the trees to avoid cutting by the king of Rajasthan. राजस्थान के राजा लोग अपना घर बनाने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े राजा जंगलों को काट देते थे. वो गई, छोड़ा नहीं, and consequently 300 people were cut into pieces. काट डाले गए, राजा ने कटवा दिया, कई गांव से थे. तो ये चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, इट वाज अमृता देवी, और उसके नाम पे आजकल अवार्ड भी आ गया है, अमृता देवी अवार्ड फॉरेस्ट में आ गया है. उसके बाद आंदोलन क्या शुरू हुआ? नेक्स्ट सुंदरलाल बहुगुणा, सुना है आपने? Yes, sir. 74 उत्तराखंड. फिर चंदी प्रसाद भट्ट, इन लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया. तो चिपको आंदोलन, दिस मूवमेंट वाज, ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये पूछे चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, क्यों हुआ? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज. उनकी देखिए, उनकी दूरदृष्टि देखिए. क्यों? हम अभी वी आर वेरी कंसर्न अबाउट ऑक्सीजन का. ये उन दिनों 1731 में अमृता देवी, आज से 250-300 साल पहले, उसको कंसर्न था गांव के लेडी कि भाई हम सांस कैसे लेंगे, ऑक्सीजन कैसे लेंगे. राइट नाउ देखिए, इट्स नॉट ओनली डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड ऑक्सीजन. ये क्या किया? ये देखिए, बड़े बड़े लाख हमारे स्लीपर्स बन के जाते रहे, ये झोए जा रहे हैं. डिजर्टिफिकेशन हमारा, व्हेन वी हमने डिफॉरेस्टेशन की तरफ मूव किए, वहाँ पे क्या हो? डिजर्टिफिकेशन. और उसमें है डिजर्टिफिकेशन के अलावा, यू सी द डिजर्ट, ये क्या? लैंड इरोजन. क्या है? सॉइल इरोजन. दिस सॉइल इरोजन, कि रूट ऑफ द प्लांट्स होल्ड सॉइल, रूट ऑफ द प्लांट आर ट्रीज होल्ड सॉइल. वहाँ इरोजन. बट व्हेन यू कट द प्लांट आर ट्रीज, there will certainly be soil erosion. Not only in a big forest, what happens? Lot of animals, plant canopy से क्या होता है? सूरज की रोशनी नहीं आने पाती, और surface area is moist, big humus. Most of the plant twigs, fallen leaves गिरती हैं, they decompose, खाद बनती जाती है. Lot of animals, organism, maybe earthworm, maybe arthropods, maybe mites, they live inside and enhance the fertility of water. We have lost. अब इसमें क्या है? एयर वाटर आ गया था, एयर वाटर पे थोड़ा हो गया था, थोड़ा फॉरेस्ट की बात हो गई. एटमॉस्फेयर पे भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा, उन्होंने डॉक्टर वर्मा ने अच्छा लेक्चर दिया था. बस रफली स्पीडली आई लेट यू नो. एक ग्रीक वर्ड है, एटमॉस्फेयर इज ग्रीक वर्ड. एटमॉस्फेयर इज वेपर, स्फेरा मीन्स स्फेयर गोल वगैरह. एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? किसका घेरा? हमने फर्स्ट डे बताया था, ट्रांसपेरेंट गैसियस कवरिंग. गैस मीन्स वेपर्स, उसमें गैस की वेपर है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, समझ उसमें. तो एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ सेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लेनेट अर्थ दैट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. किसकी बॉडी? आपने अर्थ की बॉडी से. और जो हमने पहले से बना, ना समझ में आए तो सिंपलीफाई, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव गैसियस एनवेलप दैट सराउंड्स द अर्थ. सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि आजकल एक एक चीज़ की बहुत डेफिनेशन है. व्हाट सिंपल मतलब, यू हैव टू आंसर इन सिंपल वे. इसको देते हैं तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज, कुछ और देंगे तो ऐसे आपको आंसर चुनने हैं. आपको कोई पूछा जाए तो ऐसा आंसर दीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है, जिस हिसाब से पूछा गया क्या कर रहे हैं, तो आपने कह दिया पढ़ रहे हैं, आंसर ही नहीं है आपका. आपने दूसरा क्वेश्चन इनवाइट कर लिया, वो फिर चढ़ बैठेगा आपके ऊपर. क्या पढ़ रहे हैं? आप कह रहे क्या पढ़ रहे हैं? कह रहे BA कर रहे हैं. फिर क्वेश्चन रिवाइज कर दिया, किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं बता दिया जागृति से. फिर चौथा क्वेश्चन क्रिएट कर दिया,
कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो बेटर टू बी ए वेरी पार्टिकुलर टू रिप्लाई योर आंसर. एक ही सेंटेंस में बता दो, डूइंग BA/RMA विद द सब्जेक्ट इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी. वाई टू क्रिएट, और जितना क्वेश्चन क्लियर होगा उतना ही रिटर्न्स डेवलप होता है पैनल में. ध्यान दीजिए, माइंड इटरेट हो जाते हैं, इसलिए ओनली इतना जल्दी बताने को. नाउ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, देखिए इट इज फ्रॉम अर्थ टू 10,000 किलोमीटर तक, हम इतना दूर नहीं जा रहे हैं. इट इज अप टू 10,000 किलोमीटर. अर्थ एटमॉस्फेयर जब 400, इसको अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर 480 किलोमीटर. अब यहाँ आप कहेंगे 4-5 लेयर हुआ, 7 लेयर्स हो गई. यस, 400 इनके क्या क्या है? 480 लेयर्स में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड 105 हुई. लेकिन इसमें हम जोड़ी जाती है आइनोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर भी, तो 7 हो जाती है. लीप बायोस्फीयर अभी ये हो जाती है चीज, इसको अभी आगे हम आएंगे. नहीं, नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू, यानी 480 किलोमीटर में क्या है? द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू 80 किलोमीटर हाइट इज कॉल्ड होमोस्फीयर. और पार्ट ऑफ दैट लाइज बियॉन्ड 80 के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं, हम क्या बोलते हैं? सॉरी, 80 किलोमीटर सॉरी ये हेटेरो, अप टू 80 किलोमीटर होमोस्फीयर, उसके ऊपर क्या हो गया? हेटेरोस्फीयर. समझ में बात? होमोस्फीयर एंड हेटेरोस्फीयर. नाउ आयनोस्फीयर, आयंस जिसमें होते हैं. द लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिटवीन अबाउट 48 to 9, हमने बताया कि अर्थ से 10,000 किलोमीटर तक आपका है एटमॉस्फेयर. तो अप टू 48, इन बिटवीन 48 and 906 किलोमीटर, दैट इंक्लूड्स, इसमें क्या है? थर्मोस्फीयर भी आता है और पार्ट ऑफ मीजोस्फीयर भी आता है. पार्ट ऑफ मीजो आयनोस्फीयर कहलाता है. एबव द सरफेस ऑफ अर्थ दैट सेंड्स रेडियो वेव बैक अराउंड द अर्थ. ये इसका फंक्शन क्या है? आयंस. आयन से चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल चार्ज होते हैं. ये सेंड दिस आयनोस्फीयर सेंड्स रेडियो बैक अराउंड द अर्थ. ये है, और इसको ऐसे समझेंगे. अब देखिए, अब ऐसे समझ लीजिए फिगर. अर्थ सीन ट्रोपोस्फीयर अप टू 10-12 किलोमीटर, राइट. और यहाँ पे अर्थ को, इसको क्या कहेंगे? अर्थ को बायोस्फीयर, तो दूसरी एक क्या कहें? लिथोस्फीयर. अर्थ क्रस्ट इज टर्म्ड एज लिथो मीन सॉयल. ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? सॉयल है, जहाँ पे हम सब घर रहते हैं, बनाते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, जिसमें हमारा सब लिथोस्फीयर, अर्थ क्रस्ट. और ट्रोपोस्फीयर, देन आफ्टर स्ट्रेटो. और हमारे एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? इसी के आसपास बीचों बीच में, बिलो ओजोन लेयर. स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर यहाँ पे बीच में 23 किलोमीटर तक क्या ओजोन, यहाँ पे क्या है? ओजोन लेयर. इसके हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं क्या? 16,000, 18,000, 20,000, 32,000. बैठे हैं आप लोग एरोप्लेन में कि नहीं? हाँ, ये बैठे थे पार्टी. ऊपर जाते हैं नीचे सब आपको कॉटन, बिल्कुल रुई का गद्दा दिखता है, कुछ नहीं दिखता. हाइट पे जाते हैं तो आप जब जाएंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा. इस मीजोस्फीयर. अब मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर. यहाँ पे क्या हमारे जितने सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, देख रहे हैं आप, इधर डायग्राम बना है, जितने आपके सैटेलाइट्स हैं ये सब होते हैं यहाँ पे लॉन्च हो जाए. नाउ और देख लीजिए अब इसका सेक्शन अर्थ. इसी में अर्थ में, यहाँ पे अर्थ में ऊंचा तो उठा हुआ है ना आपका हिमालय भी तो है. इसीलिए हिमालय उसको क्या कहें? एल्टीट्यूड में आ जाएगा. अब आपका फिर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर हाइट दी हुई है. मुझे आपको जियोग्राफी में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा गया, हम आपको फिगर दिखा रहे हैं. एंड थर्मस 300 एबव दिस जो है एक्सोस्फीयर. Above this is exosphere. This is gaseous envelope, transparent, protective gaseous envelope covering our planet Earth. Now, this is the important troposphere. White of just above the lithosphere is troposphere. Tropho means क्या है? हाँ, देखो लड़का, एक ग्रीक वर्ड है. वेरी गुड. क्या नाम बेटा? वेरी गुड. देखो पढ़ रहा है. ये ग्रीक वर्ड है. अभी हम आपको, ये पाठी जी कहेंगे थोड़ा लैंग्वेज में भी बोलेंगे, लैटिन ग्रीक क्या होती है, इसमें भी आधा घंटा कभी बोलेंगे. हम आप लोग चाहते हैं कि जो मेरे पास कुछ है ज्ञान, वो सब मैं शेयर कर लूँ. ट्रोपोस्फीयर, ट्रोफो मीन्स फूड, ग्रीक वर्ड है. स्फीयर भोजन वाला स्फीयर.
आप तो बोलेगे नहीं, क्या नाम बेटा आपका? एकता भूलेगे तो नहीं। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर ये भोजन वाला घेरा है कि these atmosphere is stratified in layered into different layers, stratified in different layers, गैस की लेयर बनी हुई है। और उसमें ट्रोपोस्फीयर भोजन वाला स्फीयर, it is very important climatic events such as cloud formation यानी मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड, जिससे वर्षा होती है, लाइटनिंग, थंडरिंग, थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन ETC आर टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फीयर। ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं। बिजली कड़कना, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बायोस्फीयर, अब बायोस्फीयर तो अर्थ पे ही है, अर्थ से ऊपर भी है, क्योंकि यू हैव सीन द अर्थ के ऊपर क्या है, और ऊपर जाइए तो देयर आर तमाम फ्लाइंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स जो ऊपर, मीन्स बायोस्फीयर स्फीयर ऑफ ऑक्सीजन डिपेंडेंट लाइफ में भी प्लांट, हाइट पे भी 29,000 कितना है फीट एवरेस्ट की ऊंचाई, नियर अबाउट 29,000 फीट। यस सर, एवरेस्ट की हाइट नहीं जानते? मीटर में हम फीट बोल रहे हैं। यू आर राइट, 8,800 दैट आई नो। तो उस पर मीटर में नहीं समझ आया, 29,000 फीट पे, वहाँ पे भी उसमें हाई पहाड़ों में हाईएस्ट लिमिटेशन तिब्बत पे है, जिस पे आप नहीं रह सकते आसानी से, तिब्बत पे है हाईएस्ट ह्यूमन हैबिटेशन। दूसरा है एनिमल, तमाम इंसेक्ट जो बहुत हाई पे रहते हैं, वो बायोस्फीयर में। तो अब रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फिजिकल डिवीजन, यानी बायोस्फीयर इज डिवाइडेड 3। फर्स्ट लैंड और लिथोस्फीयर। अर्थ कब फॉर्म हुई है? 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। तो लिथोस्फीयर, अब अर्थ बनने के बाद ही तो सॉइल बनी ना, अर्थ के बाद तो सॉइल नहीं बन गई है। तमाम बरसात के बाद हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हिस्ट्री वाले पढ़ा, वो अर्थ बनने के बाद ही तो सॉइल फॉर्मेशन तो बाद में हुआ है ना, पेट्रिफिकेशन हुआ है। आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड इट अपर वेदर पार्ट फॉर्म द सॉइल। वाटर और हाइड्रोस्फीयर, आप हाइड्रोस्फीयर यू नो, जितनी वाटर कंपोनेंट है आसन वगैरह, तो बायोस्फीयर के 2 पार्ट हैं, लिथोस्फीयर में सॉइल एनिमल्स, हाइड्रोस्फीयर में एक्वेटिक एनिमल्स, और बाकी कॉन्टिनेंट ऊपर में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। प्लांट पे आर्बोरियल एनिमल, राइट, प्लांट में टेरेस्ट्रियल एनिमल जो प्लांट पर रहते हैं। एंड एयर आर ब्लैंकेट ऑफ एयर कवर्स द होल अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ द एयर कवर द, यू सी व्हाट हैपेंस, सन ओरिजिनेटेड इन 4.567 बिलियन ईयर्स अगो। सन में क्या होता है, ये रेज आ रही हैं, ये क्या है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अब कन्फर्म हो गया, दिस इज अबव, दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर नियर अबाउट 18 to 25 किलोमीटर एबव द अर्थ। और दिस इज आवर प्रोटेक्टिव लेयर, ये हमारा क्या है, छाता है। दिस इज अम्ब्रेला फॉर, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला फॉर ह्यूमन। हम बरसात में छाता लगाते हैं पानी, तो हमारी ये जो रेज आ रही है इनसे बचने के लिए हमारे लिए नेचर ने, देखो नेचर हैज़ गिवन एवरीथिंग फॉर आवर लाइफ, बट वी मैन, यू एंड मी आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। हम छाता भी खत्म कर दे रहे हैं, रेज आर कमिंग, अल्ट्रावायलेट रेज आर कमिंग। ओके, नाउ इसको ऐसे समझिए, सोलर में 2 तरह, सोलर इनपुट एंड सोलर विजिबल सोलर स्पेक्ट्रम। हमने बताया, कोई ये लेक्चर है फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, अर्थ साइंस का भी, सबको मिला। सो 86% ऑफ सोलर इनपुट, जो रेज दिखी आपको हमने दिखाई, 86% ऑफ सोलर इनपुट इज कंज्यूम्ड इन द एनवायरमेंट बाय वाटर। 86%, वो जो आया किसमें, 75% वाटर स्टेज में वो कंज्यूम हो गया, एंड ओनली 14% सोलर इनपुट हीट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अब समझ में आ गई, वो चारों लेयर को 14% ही सोलर इनपुट दैट हीट अप कर, गर्म कर देता है, एंड ओनली 1% ऑफ सोलर इनपुट कम इन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट को ना मिले तो प्लांट सब मर जाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, भोजन नहीं बन पाएगा। ये तो सोलर इनपुट का। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, 7 रंग क्या क्या है, विब गियार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज एंड रेड. आफ्टर रेड इट इज इंफ्रारेड. आप ध्यान दीजिए, आफ्टर रेड इट इज इंफ्रारेड. अब बिफोर वायलेट इज इन अल्ट्रा वायलेट. अब क्लियर हो गई बात. सातों के बाद इंफ्रारेड और पहले वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट. तो हार्मफुल स्पेक्ट्रम इज अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड. इससे हमको कैसे बचना है? सातों रंग तो आ रहे हैं, हम तो रह ही रहे हैं आराम से. आजकल एक नया मेडिकल फैसिलिटी शुरू हो गई है, क्रोमोथेरेपी. जैसे आप एक्यूप्रेशर और सब होम्योपैथी एलोपैथी पढ़ते हैं ना, क्रोमोथेरेपी. सोलर में, सूर्य में जो सातों रंग है, रंगों के आधार पर आपकी थेरेपी चल रही है. स्टार्ट हुई, चल रही है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पहुँची नहीं है, चल रही है, कर रहे हैं. इस रंग से बीमारी होती है, क्रोमोथेरेपी. और इम्पॉसिबल भी नहीं, नेचर ने सब दिया है तो दिया है. अभी हम वहाँ तक पहुँच गए. साइंस इज नथिंग. साइंस अभी हम ह्यूमन ने अभी इतना साइंस नहीं जान पाया कि क्या चीज़ कि अभी बहुत कुछ जानना है. समझ रहे? सोलर स्पेक्ट्रम में इसमें क्या है, 83% इज एब्जॉर्ब एंड 5% इज ट्रांसमिटेड, नीचे चली जाती है, एंड 12% इज 12%. रिफ्लेक्ट कहाँ होती है? जहाँ वाइट है, आइस कैप है, ग्लेशियर, वहाँ से ऑब्जर्व नहीं, सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो. प्लांट वगैरह में कलर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द इनकमिंग रेडिएशन. सरफेस की जो सरफेस पे जो आ रही है रेडिएशन, उसको रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी इज कॉल्ड अल्बिडो. ये आपका क्वेश्चन बन गया, अल्बिडो एलू. डोंट से यू आर स्टूडेंट ऑफ आर्ट साइंस, आर्ट हिस्ट्री. आपको जानना है. इन्वायरमेंटल साइंस बहुत इजी हो गई. इन्वायरमेंटल साइंस बच्चों से पढ़ाई जा रही. ये सब आप देखिएगा तो चौथी पाँचवीं क्लास की बुक्स में भी दिया गई है. एल्बिडो एलू. एल्बिडो एलू का वैल्यू क्या है? स्नो में 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगी. राइट, आप समझ में आ गई. एल्बिडो एलू इन स्नो में जो सोलर आएगी 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब जब एंड 20% ऑफ सैंड. सैंड में सैंड से चमकती है ना, सैंड 20% से रिफ्लेक्ट. इसकी एल्बिडो वैल्यू है. नाउ 5 to 10% फॉर फॉरेस्ट. उसमें ऑब्जॉर्ब हो जाती है, जब 5 से 10% फॉरेस्ट से भी लौट जाती है. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड देखिए. सन हमारा ये क्या है? छाता, अम्ब्रेला, ओजोन अम्ब्रेला या ओजोन लेयर. इसकी थिकनेस हमें बता दीजिए कि नॉर्मली 400 क्या है, डाप्सन. और सिंप्लीफाई करें, 100 डाप्सन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर mm. और 400 4 mm. इतनी थिकनेस समझ. 4 mm इसके नहीं दिखा, इतना टोटल है. व्हेन इट रिड्यूसेस टू 200 mm, 200 डाप्सन यानी 2 मिलीमीटर आ जाती है, पतली हो जाती है, तो हम कहते हैं कि देयर इज ओजोन होल फॉर्मेशन. ओजोन होल फॉर्मेशन. एंड ओजोन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय Farman in 1985 in Antarctica and by Austin in 1987 in Austin, by Austin in Arctica. आर्कटिका में पहले था, अंटार्कटिका में होती है सब नहीं. आर्कटिका अब तो हर जगह होती है, इक्वेटर में भी होती है, हमारे ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन. यानी अब देखिए, ओजोन से इसे क्या अल्ट्रा वायलेट रे जा रही है. सोलर स्पेक्ट्रम तो आ रहा है, हम तो यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें यूवी आ रही है, देख रहे हैं. यूवी हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल है. अब ओजोन लेयर है. ओजोन मतलब ओजोन. आप पानी जो पीते हैं क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है. हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ऐसे समझिए गुब्बारे में हाइड्रोजन भर देते हैं तो क्या होता है? गुब्बारा उड़ने लगता है. तो आप समझ गए कितनी लाइट, मतलब बड़ी लाइट गैस है, हल्की गैस है, इसलिए ऊपर चली जाती है. दूसरी हो गई ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकल, 2 हाइड्रोजन बन गया वाटर, H2O. ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का O2 यानी 2 O2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O मेक्स ऑक्सीजन. अब एक और जुड़ गया, O3 हो गया तो ओजोन. O3 भी हो गया ओजोन. दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर. थिकनेस आप समझ में आ गए. अब क्या होता है, व्हाट हैपन, ये सी ऑन द ग्राउंड, अर्थ पे क्या है? फैक्ट्रीज है हमारे पास. वी आर हैविंग फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्री से क्या निकलता है? रेफ्रिजरेशन फैक्ट्री, ईटा है, भट्टा है, कोयला है,
रिफाइनरीज हैं, स्टील फैक्ट्रीज हैं नहीं सब, इनसे क्या निकलेगा, गैसेज निकलती है। एक आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑन CFC, ये तो पूछा जाता है, आपको सबको रटा होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 3 गैसों का मिक्सचर है, क्लोरोक्लोरीन, फ्लोरोफ्लोरीन एंड कार्बन। कार्बन 3, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 गैसेस, राइट। अब ये निकलती है तो ये तीनों गैसेस हल्की हैं, तीनों हल्की हैं। निकलने के बाद दे राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऊपर चलती चले, हल्के होने की तरफ गुब्बारे चली जा रही है। अब क्या होगा कि और ऊपर जाने के बाद यूवी आकर के यूवी डिसएसोसिएट क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यूवी का काम क्या है, अल्ट्रावायलेट का, एक क्लोरीन को अलग कर देती है। अब क्लोरीन बिकम्स मोर लाइटर, क्लोरीन अब तीनों के साथ भारी है थोड़ी, इट बिकम्स मोर लाइटर, ये बहुत हल्की हो जाती है, तो डायरेक्टली रीचेस टू ओजोन लेयर पहुंच जाती है। ओजोन में इसका बहुत घातक होती है, दिस इज वेरी हार्मफुल। ये क्लोरीन डिसएसोसिएट यानी ओजोन के O3 में से एक मॉलिक्यूल निकाल देती है, ओजोन को तोड़ देती है, किसमें, O2 में और O में, O2 + O, ये 3 O है ना इसमें, O3 में 3 O हैं। अब ओजोन जब क्लोरीन तोड़ करके O2 एक तो ऑक्सीजन जो शामिल है और O में बदल देती है, तो हमारी लेयर थिन हो जाती है। अब थिन हो गई तो यूवी स्टार्ट कमिंग ऑन द ग्राउंड, अल्ट्रावायलेट कहाँ जाती है, ग्राउंड पे आने लगती है, ग्राउंड पे आ जाती है और डिस्ट्रॉय आती है और डिप्लीटेड जोन मोर यूवी। अब मोर यूवी मोर स्किन कैंसर, जितना यूवी हमारे धरती पे आएगी उतना है आई का ट्रैक्ट है और हमारा स्किन कैंसर होगा। ये तो आप 2 जानते हैं, ओजोन का हार्मफुल इफेक्ट आर्टिकल 2 ही जानते हैं कि ओजोन कहीं आई का ट्रैक्ट एंड स्किन कैंसर होता है, लेकिन अभी बहुत कुछ हम आगे बताएंगे, ये बड़ा चैप्टर है। तो समझ में आई कि अब ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में कैसे, जो है इतना तो आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी हम भाषा में बता रहे हैं। क्या टाइम आप बताइए, छोड़ दें, ठीक है, दूसरा चैप्टर वेदर शुरू करें। अब आपको बता, देखिए अभी तो आपने समझा, और अब फिनिश इट, आई कैन फिनिश इट, नेक्स्ट चैप्टर टुमारो, नेक्स्ट पार्ट आई विल स्टार्ट टुमारो, ओके, एट द सेम टाइम स्टार्ट करें, बताते हैं।